If you have opened this video, then definitely you have these questions in mind. Can I qualify for the CLAT PG exam in the next 2 months without any coaching, without any crash courses, only through self-study? Can it be done? How do I study the so many case laws that are important for this examination? What topics or subjects should I leave for the examination? Talk about not studying them for this examination, and what subjects should I study? What are the sources that I should refer for the CLAT PG exam? Are the guides like A.K. Jain or Gaurav Mehta, are they enough? If you have these questions, then worry not, because in this video, I will give you a single Rambaan Ilaj that will clear all your doubts as to how to prepare for the CLAT PG exam in the next 2 months with only through self-study without any coaching. You don't need any coaching. And believe me, I have prepared this video after consultation with UGC NET qualified teachers, toppers that have cleared the exam in the prior years, with practicing advocates, and accordingly, whatever techniques, whatever strategies I'm going to talk about in this video, make sure to follow them to the T. Apart from that, this video has been made for everyone. It's not important that you have only started preparing in the last 1 month, next 2 months. Whenever you have started preparing, doesn't matter. If you have been preparing for the last 1 year also, this video is going to be helpful for you. And accordingly, there are basically 2 kinds of people जो कि ये वीडियो देख रहे हैं. Either आप हो जिसने की एक जो आपकी ग्रेजुएशन होती है 5 ईयर की, वो आपने कंप्लीट कर ली है, फिर आप 1 साल या 2 साल you have been doing something else and now you have come back into the picture and you want to give the CLAT PG exam, or either you are a last year student and you want to prepare and you want to come in this exam this time for the first time. So accordingly, this video will cover and talk about each and every detail for each and every person accordingly. Now for the sake of simplicity, let us firstly refresh the paper pattern for CLAT PG examination. सबसे पहले कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए जो एग्जाम है वो होगा 120 मार्क्स टोटल का, 2 आवर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन है, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 120 आपके, 1 मार्क ईच के, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके ईच रॉन्ग आंसर पे. सिंपल पैटर्न, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है. अकॉर्डिंगली 20 पैराग्राफ आएंगे, जिसमें से हर पैराग्राफ के होंगे 6 क्वेश्चन, टोटल ऑफ 120 यहाँ पे आपको मिल गया. अब यहाँ पर आपको जो मेन सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की जरूरत नहीं. इफ यू लुक एट द क्लोजिंग रैंक फॉर एनालिस्ट IU 153, फॉर नलसार 170 एंड द मार्क्स 69.75. 69 मतलब 58.13% मार्क्स, 57.50% मार्क्स. क्या ये बहुत ज्यादा है? यस डेफिनेटली. पेपर अगर कठिन है, आसान है, ये रेंज वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि इफ यू आर गोइंग फॉर सिलेक्टिव स्टडी और जो आप स्टडी कर रहे हो इन दो सिलेक्टेड एरियाज, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो, देन यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिलेक्टिव स्टडी, आप पूछोगे सर व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट. ये हम कैसे पता करें? ये हम पता करेंगे बाय एनालाइजिंग द लास्ट ईयर्स पेपर. उससे आपको एक आइडिया मिलेगा. नाउ इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहाँ पे 14% पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आया. ज्यूरिस्प्रूडेंस 11% क्वेश्चंस यहाँ पे आए. कमर्शियल लॉ में मेनली यहाँ पे पादिया टिम्बर का पूछा गया था पैराग्राफ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे 15% यहाँ पे आया. अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली लॉ यहाँ पे आपके 10% क्वेश्चंस आए. क्रिमिनल लॉ के अंदर IBC CRPC मिला लीजिए, अदर सब्जेक्ट्स मिला लीजिए, क्रिमिनल लॉ के NDPS वगैरह, आपके 26.67% क्वेश्चंस आए. फिर आप बात करते हो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, यहाँ पे 12.50% क्वेश्चंस आए. तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो आपके 5-6 सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए. आप अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हो, इफ आई टॉक अबाउट एनवायरमेंटल लॉ, केवल 5%, केवल 6 क्वेश्चन पूछे गए. मिसलेनियस के अंदर कंपनी लॉ वगैरह केवल 6 क्वेश्चन पूछे गए 5 मार्क्स % के लिए. क्या पॉइंट हुआ? व्हाट इज द मेन पॉइंट? क्या हुआ? फायदा नहीं हुआ. सो अकॉर्डिंगली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पर जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इफ आई टॉक अबाउट बैंक्रप्सी, आर्बिट्रेशन, लेबर लॉ, या फिर ऐसे जितने भी आजू बाजू के सब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर आपने अपनी प्रिपरेशन इन द लास्ट 6 months, 3 months, 2 months, if you have started preparing, go ahead, prepare them. I will not say anything. But if you have started your preparation right now while you are watching this video, then believe me, I forbid you
कि आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप केवल इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड नाउ अकॉर्डिंगली इन दिस वीडियो वी विल फर्दर डिस्कस कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अकॉर्डिंगली एक एक करके कैसे पढ़ सकते हो। वी विल टैकल ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जब आप टैकल कर रहे हो, सबसे बड़ी बात आपको एक बुक इस्तेमाल करनी है जो कि है JN पांडे की। ये बुक आप जरूर जाके रेफर करिए, इसको खरीद लीजिए ना हो तो आपके पास, क्योंकि इस बुक के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का दिया हुआ इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो बिल्कुल प्रिसाइजली दिया हुआ है। जो आपके सीरीज ऑफ केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए केशवानंद भारती के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में सीरीज ऑफ केसेस हैं। आप बात करो रिजर्वेशन के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, सबके अंदर सीरीज ऑफ केसेस है। वो सीरीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए JN पांडे की बुक जरूर से रेफर करिए, ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट दैट आई विल टेल। सेकंड में अगर आपको थोड़ा और रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है तो जो सेकंड बुक मैं रेकमेंड करूंगा वो है आपकी परीक्षा मंथन की रेडी रेकनर। ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑल्सो एंड क्लैट PG ऑल्सो। जब आपको रिवीजन करना है तो ये बुक के अंदर से आप बहुत जल्दी अपना जो सब्जेक्ट्स हैं उसको गो थ्रू कर सकते हो। दैट्स वाई आई विल रेकमेंड दिस बुक। ये बुक आप जरूर रेफर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, तो मेरे हिसाब से इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ आपके आएंगे सीधे सीधे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर पढ़ने वाला। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, फंडामेंटल राइट्स और जो आपके ये प्रोविजंस होते हैं इनके थ्रू ही सारे के सारे लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल रेडी उनकी डील करी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार इसमें क्या है वो है सबसे पहला आपका आर्टिकल 14। बिकॉज आर्टिकल 14 के अंदर आपका जो राइट टू इक्वालिटी है या फिर इक्वल ट्रीटमेंट है, जो इसके लिए कई सीरीज ऑफ जजमेंट्स आए हैं, जैसे कि आपका कल तीशा का हो गया, यानी नागराज का हो गया, बबीता पुनिया का हो गया। बबीता पुनिया तो लास्ट बार आया भी था तो रिपीट होने का चांस भी है। तो आर्टिकल 14 को बहुत कायदे से पढ़िएगा। फिर अगले जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको ध्यान से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज रिजर्वेशन के ऊपर प्लेथरा ऑफ केसेस हर बार आते हैं। 2020 में आया था पैराग्राफ, 2021 में नहीं आया, तो 22 में आने का बहुत बड़ा चांस है कि रिजर्वेशन में से आए। तो आर्टिकल 15 और 16 को घोंट के एकदम पी जाइए। उसके अंदर भी आपको सीरीज ऑफ केसेस का ध्यान रखना है और जो रीसेंट केसेस आए उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके जो इंदिरा साहनी, MR बालाजी, M नागराज, जर्नैल सिंह 1 और जो जर्नैल सिंह 2 का जजमेंट आया, बीका पवित्रा को जो 1 और 2 का जजमेंट आया, ये सारे के सारे देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर विकास कृष्णा राव और फिर आपका जो जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल के भी जजमेंट्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल का, इसको बहुत ध्यान से देखेगा। रिजर्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देन बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 21 पे और आर्टिकल 22 के ऊपर। आर्टिकल 21 और 22 में इसलिए एक साथ बोल रहा हूँ बिकॉज 21 के अंदर आपके जो केसेस हैं, जैसे कि के नजीब का केस हो गया या फिर बांका स्नेहा शीला वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का केस हो गया, ऐसे जो केसेस होते हैं इनमें बात होती है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन की। यहाँ पर आपको बेसिकली जो केसेस मिलेंगे आर्टिकल 21 और 22 से रिलेटेड वो UAP और NDPS से भी डील करेंगे। तो वहाँ पर ये जो केसेस होंगे, ये जो बात हम लोग करते हैं रिलेटेड स्टेट्यूट्स की, तो इसमें ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेंगे, ये लोग बेल की बात करेंगे, ये लोग जो प्रोविजंस हैं UAP NDPS की उनकी बात करेंगे। तो आपको तीनों को इंटरकनेक्ट करके यहाँ पे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। CRPC के अंदर बेल, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 मिला के एक नेक्सस बना के पढ़िएगा। केसेस जितने भी आए UAP NDPS उनको मिला के पढ़िएगा, तभी आपकी यहाँ पे बात बनेगी। इसमें से भी एक पैराग्राफ आने का बहुत ज़्यादा लाइकली चांस है। इसके बाद मैं बात करूं अगर कौन से वो और हमारे हिसाब से 4 टॉपिक्स हैं जिसमें से कि एक पैराग्राफ आने का चांस है जो कि आपको ज़रूर से देखने हैं, वो है सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं 2021 में भी, 2020 के भी प्रशांत भूषण का जजमेंट है वो तो आ ही चुका है क्लैट में। उसके अलावा स्वराज इंडिया का, दीपक कंसल का, इसके जैसे और भी जितने जजमेंट्स हैं ये आप देख लीजिएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाके अच्छे से पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर। फिर बात करें जुरिसडिक्शन की ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यहाँ पे इस टॉपिक को बहुत कार्य से करिएगा, इसमें से भी आने का चांस है क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट रिव्यू जो होता है जजमेंट्स का आर्टिकल 226 के अंदर और 137 के अंदर जो पावर है वो आप कायदे से एक बार देख लीजिएगा। इसमें कुछ आपके सीरीज मतलब कुछ केसेस आए हैं, उन केसेस को कायदे से स्टडी करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो और हॉट टॉपिक्स हैं उनमें आ जाते हैं आपके ट्राइब्यूनल के। इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा मद्रास बार एसोसिएशन का एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स आया हुआ है 2020 से 2021 के अंदर कई जजमेंट्स आए हैं, इनको ध्यान से एक बार पढ़िएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रॉजर मैथ्यू का जो जजमेंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के हिसाब से, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो टॉपिक और है जो कि मैं आपको कहूँगा दो कि ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का। तो इसके अंदर विकास कुमार वाला केस जो था वो पिछली बार आया था जो कि क्लैट में, हो सकता है कि दोबारा एक बार आ जाए, तो इस टॉपिक को भी जरूर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
ध्यान रखी जाएगा कि इसमें मैंने जो बात करें हैं, डिस्कस करें हैं टॉपिक्स, इसमें एडमिन लॉ भी थोड़ा थोड़ा एडेड है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एडेड है, तो अकॉर्डिंगली पूरा एम्बिट समझ के इसको यहाँ पे पढ़िएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ो, चाहे आप सीआरपीसी पढ़ो, चाहे जो भी पढ़ो, ऐसे जजमेंट्स जिसके अंदर कोई गाइडलाइंस दी गई हैं, कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, जिससे कि कुछ एक स्पेशल चीज़ टर्न अप होने का चांस है, या फिर उससे जो कोर्स ऑफ एक जजमेंट्स जो आते हैं फ्यूचर में उसको चेंज होने का एक चांस है, या फिर उस केस के अंदर एक लार्जर बेंच में मामले को भेजा गया, वैसे जजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंगली अगर आपको हेल्प चाहिए इस पूरी चीज़ में, आप हमारे चैंपियंस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे 40 जो लैंडमार्क केसेस उसमें एनरोल करके आप ये सारी चीज़ें जो हम लोग ने यहाँ पे प्रिपेयर आपको बता रहे हैं वो सब कुछ इसमें पहले से इंक्लूडेड है, आप अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है सीआरपीसी का। Now, what to study in CRPC? देखिए, CRPC was not in the picture for the CLAT PG papers in 2020. 2021 में पहली बार CRPC का पेपर इंक्लूड करा गया CLAT PG में, तो अकॉर्डिंगली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। CRPC के अंदर जब आप पढ़ाई कर रहे हो, यू हैव टू गो फॉर द बेयर एक्ट फर्स्टली। अब बेयर एक्ट के अंदर भी ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू आर कपलिंग द बेयर एक्ट विद द केस लॉज, आपको केस लॉज को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की पढ़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आए थे उसके अंदर सीधे सीधे पैराग्राफ के अंदर ही काफ़ी आंसर्स आपको मिल गए थे। तो आपका अगर बेयर प्रोविजन का नॉलेज अच्छा है तो आप बिना केस पढ़े भी सीआरपीसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बेयर एक्ट पढ़ना सीआरपीसी में इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। अकॉर्डिंगली इसके अंदर भी जरूरी नहीं है कि आप पूरी बेयर एक्ट पढ़ो, आई नो बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि आप बेसिकली ज़्यादा ध्यान रख सकते हो, जिसपे कि पैराग्राफ आने का ज़्यादा चांस है, वो टॉपिक्स हैं आपके अरेस्ट के। नंबर 1, अरेस्ट के ऊपर बहुत जजमेंट्स आए हैं 2021 में, ध्यान रखिएगा, उसको आप जरूर देखिए। फिर आपका टॉपिक आता है बेल का। अब बेल आपका बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, लैंडमार्क टॉपिक है, इसको तो मैं स्ट्रेस इनफ कर ही नहीं सकता हूँ, बेल तो पढ़ के ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बेल के अंदर से आपके जो पॉस्को एक्ट का स्पेशल एनैक्टमेंट हो गया, यूएपीए का हो गया, एनडीपीएस का हो गया, इसके अंदर बेल और कस्टडी की बात हमेशा आती है, राइट्स ऑफ जो पर्सन अरेस्टेड है उसकी बात आती है। तो अकॉर्डिंगली अरेस्ट और बेल में से दोनों में बेल के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ट्राइफेक्टर नेक्सस बना के चलना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसका और सीआरपीसी का। नंबर ऑफ जजमेंट्स इसमें पास हुए हैं, जैसे कि आपका के एन अजीब का हो गया, गौतम नलवखा का हो गया, सुशील अग्रवाल का हो गया, इन सब पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बेयर एक्ट भी देखिएगा, जो केसेस आए हैं वो भी देखिएगा, आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंगली जो भी आपके प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, आपका 311 से लेकर 320, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक सीरीज ऑफ केसेस आए हैं, ध्यान रखिएगा। केसेस पढ़ने ज़रूर है, लेकिन बेयर एक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा किताब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, गो फॉर द केसेस एंड द बेयर एक्ट इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका समनिंग पावर, जो कि 319 में दिया हुआ है। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ेंगे, आपका सीआरपीसी आसानी से निकल जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको बेयर एक्ट तो देखनी पड़ेगी पूरी, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए उनके ऊपर खास अटेंशन दीजिएगा। अब बात करते हैं आईपीसी के बारे में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीसी कि सर आईपीसी को कैसे टैकल करना है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आईपीसी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है एज अ होल, बिकॉज यहाँ पर आपका जो बेयर एक्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ जो केस लॉज दिए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, यू हैव टू रीड द होल ऑफ आईपीसी, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। बाकी चीज़ों को आप केवल ग्लांस भी देख लोगे, आपका काम चल जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट ईयर्स पेपर, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बेयर प्रोविजंस आए थे, जैसे कि अबेटमेंट टू सुसाइड हो गया या फिर आपका राइट टू डाई हो गया, उनके ऊपर क्वेश्चंस आए थे। और जो आपका मेन जो पैसेज था वो था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से, जिसमें कि अरुणा शानुभाग और मारुति श्रीपद दुलल का भी केस इंक्लूडेड था। तो यहाँ पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अगर लास्ट ईयर का पैटर्न भी चेक करोगे, एक जो लैंडमार्क केस था उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे 2 पैसेज जाने का चांस है आईपीसी के अंदर। बट जब आप पढ़ाई करो तो कोई अच्छी, आपने जैसे मान लीजिए गौरव मेहता ले ली या आपने एके जैन ले ली, उसमें से आप पढ़ाई करो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कायदे से देखो, कम से कम इसमें 4-5 दिन लगाओ और इसको पढ़ो। फिर जो रिसेंट केस लॉज आए हुए हैं, जो कि ज़्यादातर जिन टॉपिक्स पे डील कर रहे हैं वो हैं आपके जनरल डिफेंसेस के, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के। इन 3 टॉपिक्स को कायदे से देख लीजिएगा, इससे जुड़े हुए केसेस आपको बहुत मिलेंगे।
इनको कायदे से कर लीजिए, और जो आपकी पूरी की पूरी किताब है, AK जैन हो या कोई भी आप रहे हो, उसको कायदे से कर लीजिए, आपका IPC में काम हो जाना चाहिए। बट मेक श्योर कि आप पूरा पढ़ें, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कायदे से देखें, बाकी चीज़ों को आप एट ग्लांस भी देख सकते हैं। फिर हम लोग अगर बात करते हैं फैमिली लॉ की, तो देखिए फैमिली लॉ के अंदर हम लोग लास्ट ईयर का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो 12 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 पैसेजेस दिए गए, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर, एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के ऊपर। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे आपको ये समझ में आता है कि जो बेयर एक्ट है एज वेल एज जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको जो रीसेंट टाइम्स में जो जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे मान लीजिए आपका विनीता शर्मा राकेश शर्मा का केस आया, राजनीश नेहा का केस आया, अभिलाषा का केस आया, उन सारे केसेस को और साथ में जो आपकी बेयर एक्ट है आप उसको उठा के डिवाइड कर लो। हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन मार्जिनशिप एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जितनी भी बेयर एक्ट है, इनको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनको एट ग्लांस आप प्रॉपरली देख लो, और उसके बाद जो केस लॉज हैं उनको आप पढ़ लो। केस लॉज बहुत ज़्यादा नहीं, करीब अराउंड 20 से लेके 25 केसेस होंगे, आप उनको देख लो, आपका काम आराम से हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू द फैमिली लॉ पार्ट। और उसके बाद भी अगर हम लोग बात करते हैं एज अ सेफ मेजर, मैं अगर कहूँ मुस्लिम लॉ भी आप एट अ ग्लांस देख लो, बिकॉज जो हिंदू और मुस्लिम लॉ है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। तो ये हम लोग की तरफ से एडवाइजेबल नहीं हुआ कि आप एक एक डिटेल जो है पकड़ के जाओ फिर उसमें एक एक चीज़ पढ़ो। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप टारगेटेड स्टडी करो, और ये आप समझ के चलो कि 2 पैराग्राफ, 2 क्वेश्चन ऑफ पैराग्राफ यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, जो कि केवल और केवल बेयर एक्ट से होंगे। और बाकी आपके लिए ईजियर रहेगा कि अगर आप फर्स्ट हैंड बेयर एक्ट को कायदे से पढ़ लो तो आप जो केसेस पढ़ रहे हो उनको भी आपके लिए कवर करना आसान होगा। तो फर्स्टली गो फॉर द बेयर एक्ट, गो फॉर अ गुड बुक, वहाँ से आप पहले पढ़ लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ग्लांस देते रहिए, उसके बाद आप केस लॉस पे आइए, आपका काम आराम से हो जाएगा। Now, after family law, let us talk about jurisprudence and international law together. Now, why am I doing that? Because jurisprudence जो है आपका और जो आपका इंटरनेशनल लॉ है, इनके अंदर बेयर एक्ट समझ लीजिए नहीं होती है नियरली। आपके इंटरनेशनल लॉ में बेयर एक्ट होती है बट बहुत सारी होती हैं, आप कहाँ कहाँ तक ढूंढ ढूंढ के पढ़ोगे, उसमें बहुत कठिन काम है। इसीलिए इनके अंदर जो पैसेजेस भी लिए जाते हैं ना, जैसे क्लैट ने पैसेजेस जो लिए थे वो काफ़ी हद तक आपके ओपन सोर्स होते हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस केस से आया या फिर किस पर्टिकुलर बुक से उन्होंने लिया, प्रिडिक्टेबल ये चीज़ नहीं हो पाती हमारे लिए भी करना। तो हमारी तरफ से अगर आप बात मानोगे, हमारी बेस्ट एडवाइस लोगे, तो आपके लिए यहाँ पर रीडिंग प्रैक्टिस करना और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आप चाहो तो मॉक पेपर्स हमारे संभव लॉ में भी ले सकते हो, आपको 1500 के अंदर 25 हाई क्वालिटी मॉक पेपर्स विद ईच एंड एवरी मॉक पेपर कंटेनिंग सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकते हैं, हमारा ऐप भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जैसे आपका क्लैट का पेपर जब लास्ट टाइम आया था तो उसके अंदर जितने भी आपके पैराग्राफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के आए या फिर इंटरनेशनल लॉ के आए, काफ़ी आए थे, 4 पैराग्राफ इन टोटल, उसके अंदर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के ही काफ़ी आंसर्स को कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए रीडिंग हैबिट को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप और आसानी से गो थ्रू कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए। ये जो पूरा पॉइंट है ना आपके लिए, आप कम से कम 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो आराम से इसमें अटेम्प्ट करके निकाल सकते हो। और अगर हम लोग बात करें फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो इसके अंदर जो रीडिंग पैसेज वाली बात मैंने जो अभी कही वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर मैं बात करूँ एज अ सेफ्टी नेट, तो एक आप ये काम कर सकते हो कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो स्कूल आपका एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, वो देख लीजिए। जो आपकी थ्योरीज हैं जो दी गई हैं ज्यूरिस्टों के द्वारा वो देख लीजिए। जो कंसेप्ट्स हैं जैसे कि मान लीजिए आपका लिबर्टी हो गया, ओनरशिप हो गया, पोजेशन हो गया, लॉ लीगल थ्योरी हो गई, कस्टम्स हो गया, मैक्सिम्स हो गए, सोर्सेज हो गए, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप जाके किसी अच्छी बुक, चाहे आप एनवी प्रांजपे ले लो या वीडी महाजन ले लो, वहाँ से आप इसको कर लोगे, आपका काम हो जाना चाहिए। कम से कम आप 2 दिन ज्यूरिस्प्रूडेंस को प्रॉपरली दीजिए और प्रॉपरली उसको पढ़िए। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ के लिए, तो यहाँ पे भी आपको ये अज्यूम करके चलना है कि एक ओपन सोर्स एक काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, डिटरमाइन कर पाना नहीं हो पाता। क्लैट के प्रीवियस जो पेपर है उसके अंदर भी टॉर्चर एक्सट्रेडिशन पे भी जो पैराग्राफ आए थे उसके अंदर से आप काफ़ी आंसर्स को निकाल सकते थे पैराग्राफ के अंदर में से। अगर आपको कन्वेंशंस पता थे टॉर्चर एक्सट्रेडिशन जुड़े हुए, आपके लिए और भी अच्छा रहता। तो सबसे अच्छा आपके लिए यही रहेगा यहाँ पे कि आप कोई अच्छी बुक लो और उसके अंदर से आप इंटरनेशनल लॉ को प्रिपेयर करना शुरू करो, चाहे शॉर्ट में ही करो। अगेन अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या आप देख सकते हो इसके अंदर, तो इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ जो कस्टमरी होता है, वो जो नेचर है, थ्योरीज है इंटरनेशनल लॉ की, वो देख लीजिए। ट्रीटीज, कन्वेंशन, जो स्टेट्यूट्स हैं, जो मैक्सिम्स हैं, जो लीगल टर्म्स हैं,
ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, खास करके जो आपकी यूएन की ट्रीटीज़ है ना सारी की सारी, जैसे वियना कन्वेंशन हो गया या फिर आपके मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हो गए, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज़ और, जो लैंडमार्क केसेस, जैसे कि मान लीजिए निकारागुआ केस हो गया, कॉर्फू चैनल केस हो गया, बाकी के जो केसेस हो गए, उनको आप एक अच्छी रीडिंग दे दीजिएगा, वो आपका काम काफ़ी हद तक कर देंगे। एक चीज़ और, जो क्लैट थी उसने इंडियन प्रोस्पेक्टिव से इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया था, तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल लॉ में विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, उस पर भी थोड़ा सा नज़र रखिएगा ऑनलाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो फैक्ट है कि जो क्लैट है उन्होंने 2 पैसेज दिए थे, तो आपको समझ लीजिए 24 क्वेश्चंस इन टोटल, यहाँ पे 2 पैसेज थे ज्यूरिस्प्रूडेंस के, 2 थे इंटरनेशनल लॉ के, टोटल में 24 पैसेज थे। तो आपके ये बहुत बड़ा चंक है यहाँ पर एग्जाम का, ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको इक्वली 2 दिन का या 3 दिन का टाइम देकर कायदे से पढ़िए। कोई भी अच्छी आप बुक ले लीजिए जिसमें कि शॉर्ट में दिया हो, जैसे कि मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए कहा एनबी प्रांजपे, वीडी महाजन में से कोई एक ले लीजिए। इंटरनेशनल लॉ के लिए आप कोई गाइड रेफर कर सकते हो या फिर एक जैन के अंदर भी आप उसको देख सकते हो, और उसको पढ़ने के बाद आप मॉक पेपर्स लगाइए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आप गेस करने बैठोगे कि कौन सा टॉपिक आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली अटेम्प्ट, और वो काम आपके चीज़ नहीं आने वाली है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल लॉ, आई विल नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक कंपनी लॉ और बैंक्रप्सी कोड, बिकॉज अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आपके पास समय है कि आप एकदम डीप में जाके उन सब्जेक्ट्स को भी तैयार कर पाओ, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। अकॉर्डिंगली अगर आप कमर्शियल लॉ की बात कर रहे हो तो मैं केवल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूंगा, और ज़्यादा से अगर आपको देखना है तो आप सीपीए देख लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके आगे जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम लोग कैसे आपको पढ़ना है हम लोग बात करें, तो जो पिछली बार लास्ट ईयर फॉर्मेट हम लोगों ने देखा, पादिया टिम्बर केस के ऊपर आपके पैसेजेस आए थे, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए दोज वर रिलेटेड टू द बेयर एक्ट ओनली। अगर आपको बेयर एक्ट की नॉलेज है, अगर आपको जो लैंडमार्क केसेस हैं उनके साथ अटैच्ड उनकी नॉलेज, चाहे इंग्लिश लॉ की हो, चाहे आप बात करो फेल्ट वर्सेस बिंडले के, हारी वर्सेस फेसी की, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी तक जो इंडियन केसेस हैं और बाकी केसेस की, तो यहाँ पर आपको केवल इनको पढ़ने की ज़रूरत है, किसी अच्छी भी बुक से, किसी गाइड से, आपका काम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप चले जाओगे तो 10-15 आपके केसेस ऐसे होंगे जो कि आए हुए हैं रिसेंट उसमें टाइम्स में, आप वो देख लीजिए। मोस्टली आपका काम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंगली बहुत ही छोटी वैसे भी बेयर एक्ट होती है, अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल है, देयरफॉर बहुत ज़्यादा आपका कोपियस अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लगेगा उसको कवर करने के लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वर्ड प्ले जो होता है ना क्वेश्चंस में, वो बहुत भयंकर होता है। वो लोग उठाएंगे, एक पूरा आपका सेंटेंस लेंगे, उसमें से कोई एक वर्ड चेंज करेंगे या उसके साथ कुछ प्ले करेंगे, तो पे वेरी क्लोज अटेंशन टू क्या क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या पैसेज के अंदर लिखा हुआ है, कोरिलेट करके अपनी स्पीड को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करिएगा, इस पूरे पैसेज को ध्यान रखिए। साथ ही में जो कंसेप्ट है ना आपके, जैसे कि मान लीजिए कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स, बेलमेंट का, प्लेज का, एजेंसी का, इनको प्लीज़ एक बार गो थ्रू थरोली कर लीजिएगा, काफ़ी ज़रूरी है। फिर हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल बेयर एक्ट होती है जनरली, हमें पता है, और अगर आपको इसको देखना भी है तो एनसीडीआरसी के जो आपके प्रोविजंस हैं रिलेटेड वो देख लीजिए। एक आध इसमें लैंडमार्क केसेस हैं, अगर आपके पास टाइम हो आप देख लो, प्रिपेयर कर लो, पर ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत एज सच नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से वी प्रोटेक्ट 1 या 2 पैराग्राफ तो आएगा ही आएगा, अकॉर्डिंगली उसको कार्य से करिएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं आज ज़रूर हूँ रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसमें केवल मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हो गया आपका इन्वायरमेंटल लॉ। अब देखिए इन्वायरमेंटल लॉ जो कि है ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना आसान होता है, तो अगर आप 1 दिन या 1.5 दिन लगाते हो तो फिर आपके जो बेयर एक्ट हो गए, फॉरेस्ट एक्ट, डाइवर्सिटी एक्ट के, एयर वाटर एक्ट के हो गए, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गए, जितने भी हो गए, इनको करना आपके लिए थोड़ा आसान है, बिकॉज जो प्रोविजंस होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा हद तक रिपीट होते हैं। तो आप मेन सेक्शंस जो हैं अगर आप वो देख लो, जो आपके प्रिंसिपल्स आए थे, जो आपके कन्वेंशंस आए थे, आप वो देख लो, तो आपका काफ़ी हद तक इन्वायरमेंटल लॉ प्रिपेयर हो सकता है। और कहीं मान लीजिए भूले भटके एक पैराग्राफ आ गया, जैसे पिछली बार आया था, तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा स्कोर कर पाओगे इन्वायरमेंटल लॉ में, अगर टाइम हो तभी करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बी श्योर टू रीड द एनजीटी एक्ट। एनजीटी एक्ट में बहुत केसेस आ रहे हैं उसके, क्योंकि एनजीटी खुद इटसेल्फ काफ़ी आजकल एक्टिव है, तो अकॉर्डिंगली एनजीटी एक्ट जरूर देख लीजिएगा। ये बात भी आप समझ लीजिए कि थोड़ा ट्रिकी होगा, एकदम ही केक वॉक भी नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी नीच सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली 10-15 ऐसे जजमेंट्स आए हुए हैं जो कि इन्वायरमेंटल लॉ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है रिसेंट ईयर्स में, तो अकॉर्डिंगली आप वो भी देखते हुए चलिएगा। फिर मैं बात करूँ, एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपको यहाँ पे डीपीएसपी जो है ना वो मस्ट है। आप चाहे बात करो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, आप बात करो चाहे इंटरनेशनल लॉ की या फिर इन्वायरमेंटल लॉ की, उन सब के अंदर
आपके DPSP आता है तो DPSP कायदे से करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इन्वायरमेंटल लॉ को, कमर्शियल लॉ को, जिसमें आपका आर्बिट्रेशन आ गया, NI एक्ट आ गया, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इसमें आ गया, IBC, जैसे कि मैंने कहा ये सब नीड सब्जेक्ट हैं। तो हो सकता है एक पैसेज दो पैसेज भूले भटके आ गए, आप सरप्राइज हो जाओगे उस चीज़ से, लेकिन उसका आप कुछ नहीं कर सकते। एक पैसेज अगर आपका छूट रहा है, दो पैसेज आपका छूट रहा है, आपको कोशिश करना है कि आप 70 से 75% मार्क्स, मतलब 70 से 75 मार्क्स लाएं, परसेंटेज नहीं, मार्क्स लाएं, वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। फिर एक जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और एविडेंस एक्ट। इसके अंदर भी एविडेंस एक्ट के अंदर मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, ये जितनी चीज़ें हैं, या फिर जो ऑल एक्ट्स हैं जो कि आपका लास्ट टाइम जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी, जैसे मान लीजिए कंपनी लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को मिला के पूछा गया, तो उनका ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे पढ़ो। एविडेंस एक्ट के अंदर भी जब जा रहे हो तो जो मेन आपके प्रोविजन है उनको आप थोड़ा देख लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर मैं अगर कहूँ टाइम अगर आप स्पेयर कर पा रहे हो तो एक दो क्वेश्चन उसमें आया था तो आप देख लो, हो सकता है क्लैट ऑफ द पैटर्न रिपीट करे उसमें से आ जाए। फिर मैं अगर आगे बात करूं लास्ट इस वीडियो के अंदर कि इस पूरे वीडियो का आपका मेन स्कोप क्या है, मैंने जो बातें करी उनको आपको कैसे पढ़ना है, मैंने ये तो आपको बता दिया कि आपको किस सब्जेक्ट्स में से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ देखनी है। अगर मैं बात करता हूँ केस लॉज की, तो आप वो केस लॉज कहाँ से कर सकते हो, वो आप कर सकते हो SC ऑब्जर्वर की वेबसाइट। सबसे पहले जाइएगा SC ऑब्जर्वर की वेबसाइट के अंदर जितने भी केसेस दिए हुए हैं ना, उनके अंदर जाके अच्छे से देख लीजिए कि उसमें क्या हेडिंग आई, कौन से इंस्टीट्यूट वहाँ पे क्वेश्चन में थे, कौन सी बातें उनमें बोली गई 2017 से लेकर 2022 तक। बिकॉज ये जितनी भी केसेस हैं आपके, वो सारे के सारे क्लैट के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मार्क माय वर्ड्स। उसके बाद फैजान मुस्तफ़ा के जो वीडियोस हैं, वीडियोस के ऊपर आप देख सकते हो, आप उससे आइडिया ले सकते हो, लेकिन उसके बाद जो टॉपिक उन्होंने कवर करा उसको अलग से भी जाके आप एक बार पढ़ना आपके लिए सही रहेगा। जो सा टॉपिक कवर करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने का चांस रहता है। फिर जैसे कि मैंने कहा SCC ऑनलाइन ब्लॉग, ये आपका फ्री सोर्स है, यहाँ पे आप जाओ आराम से, जितने केसेस आप वहाँ पे देख पा रहे हो उनको आप करो। फिर गौतम भाटिया सर का ब्लॉग हो गया, ये आप देख सकते हो। लिव लॉ और बार एंड बेंच आपका पेड सोर्स है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसके साथ वर्क करते हो। लास्टली मैं कहूँगा संभव लॉ में जो हम लोग जो वीडियोस बना के रखी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेस की, वो आप देखना ज़रूर, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, मेहनत आपको होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे बेस्ट आपके लिए जो बेट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आप हमारा क्लैट PG का चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स ज़रूर उसमें आप एनरोल करिए। बिकॉज वो सारी चीज़ें जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बोली हैं, एल्बिएट ऑफ जो आपका मेन जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अगर हम लोग वो कर दें, जितने भी केस लॉज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का रिलेटेड जितनी बातें हैं, वो सारा का सारा इस कोर्स के अंदर कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 25 मॉक पेपर्स भी मिलेंगे। फिर जब अपना स्टैटिक पाथ तैयार कर लोगे तो 5000 केस लॉ जो आपके क्वेश्चंस हैं आप वो लगा के MCQs लगा के अपने जो प्रोसेस है आप पढ़ाई करने की उसको ट्रैक भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसके अंदर हम लोग ने कोशिश करी है कि हम लोग हर उस चीज़ को इंक्लूड करें जो कि क्लैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे मैंने इस वीडियो में बार बार कहा है, प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैट PG पेपर। सो अकॉर्डिंगली आप इस कोर्स के अंदर ज़रूर एनरोल करिए। अगर आपको इसमें नहीं एनरोल करना, आप और भी कोर्सेज को देख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपकी कमज़ोर है, अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ पे फोकस करते हुए आइए, एनरोल करिए। अकॉर्डिंगली आई विल ऑल्सो बी एबल टू हेल्प यू आउट। अगर आपको कोई डाउट्स आती हैं, कोई भी सजेशंस आपको चाहिए, तो अकॉर्डिंगली अगर आप एक बार एनरोल होते हो तो फिर अकॉर्डिंगली मेरे साथ, मैं भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। मैं आपकी परफॉर्मेंस जो होती है उसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि आप क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो जो है ये आपके बहुत बहुत काम आए, बिकॉज 2 महीने रिमेन अब रह गए हैं, केवल बचे हैं। तो अकॉर्डिंगली आई होप कि ये वीडियो देखकर आपका काफ़ी जो डाउट्स रहे हों आपके सॉल्व हुए हैं। एंड आई होप and wish you the very best of luck for this exam. Thank you very much. Okay.